ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دوپہر کے بعد کا وقت تھا، مگر کھڑکیوں پر دبیز پردے گرے ہونے کے باعث روشنی ماند پڑ چکی تھی۔ چھت والا پنکھا سست رفتاری سے گھوم رہا تھا اور ہانیہ بالکل ساکت بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھی اور نظر فرش پر ٹکی ہوئی تھی۔ کمرے میں پھیلی بے ترتیبی بتا رہی تھی کہ کئی دنوں سے یہاں نہ کچھ بدلا ہے اور نہ کوئی آیا ہے۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور بنا جواب کا انتظار کیے دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ ایاز اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بہن کے لیے پریشانی واضح تھی۔ اس نے کچھ لمحے ہانیہ کو دیکھا، پھر آہستہ قدموں سے چلتا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ اس نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہانیہ نے بمشکل چہرہ اٹھایا اور فقط سر ہلا دیا۔ زبان جیسے بند ہو گئی تھی، اور ایسا آج پہلی بار نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ 2 سال سے ہوتا آ رہا تھا۔ ایک واقعہ اس کی پوری ذات کو تبدیل کر کے رکھ گیا تھا۔ ایاز نے کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا، جس پر تھکن اور اداسی کی تہیں جم چکی تھیں۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، زندگی یوں گزارنے کے لیے نہیں بنی ہانیہ۔ انسان کو دکھ جو ملتے ہیں وہ اسے ختم نہیں کرتے، بدلتے ضرور ہیں۔ تم جو اندر ہی اندر خود کو سمیٹتی جا رہی ہو، یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر مزید نرمی سے بولا، زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے۔ بند کمرے، خاموشیاں، آنکھوں کی نمی، یہ سب تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ باہر نکلو، روشنی میں آؤ، اپنے لیے جیو۔ ہر دن خود کو سزا دینا چھوڑ دو۔ جو ہونا تھا سو ہو چکا۔ اس ماضی کو نہ تم بدل سکتی ہو اور نہ ہی میں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان 2 سالوں کو تمہاری زندگی سے ختم کر دیتا، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو تمہیں ہر قیمت پر تسلیم کرنا ہوگا بیٹا۔ وہ نہایت نرمی اور محبت سے بولا تھا۔ ہانیہ خاموش رہی، جیسے الفاظ اس کے اندر کہیں جم گئے ہوں۔ ایاز نے ایک ہلکی سانس لی، پھر اس کی طرف دیکھ کر کہا، ہم سب مری جا رہے ہیں اور تم بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہو۔ تھوڑا ماحول بدلے گا تو شاید دل بھی بدلے۔ نئے منظر، نئی ہوا، شاید تمہیں کچھ بہتر لگے۔ اس طرح کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر تم پاگل ہو جاؤ گی۔ سب تمہاری وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ ہانیہ نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ اب کے بار اس کی آواز بھی نکل آئی، نہیں لالا، مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ بوا جی تو ہوں گی نا، ان کے ساتھ رہ لوں گی۔ آواز میں تھکن کے ساتھ ایک عجیب سی خفگی تھی، جیسے زندگی سے بیزار ہو چکی ہو۔ آپ سب چلے جائیں، میری وجہ سے کسی کو بھی پروگرام خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا کہیں بھی جانے کا دل نہیں۔ ایاز کی آنکھوں میں ناگواری سی لہر دوڑی، مگر وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے بولا، چپ رہو ہانیہ، تمہیں کیا پتا کب، کہاں اور کیا کرنا بہتر ہے۔ تم جا رہی ہو اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور میں کچھ نہیں سنوں گا۔ میں تم سے بڑا ہوں اور تمہارا بہتر جانتا ہوں۔ میں مزید تمہیں اس اذیت میں زندگی گزارنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ بس بہت ہو چکا۔ وہ انسان نہیں تھا، جانور تھا، جس نے میری بہن کی خوشیاں اور اس کی ہنسی سب چھین لی۔ جبکہ اس نے تڑپ کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ وہ اس کو منع کرنا چاہتی تھی کہ اس مرحوم شخص کے بارے میں ایسا مت کہو، لیکن اس انسان کا نام زبان پر آتے ہی اسے اپنا آپ جمتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ رات، وہ منظر ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ تھوڑا آگے جھکا اور ہلکی مگر پختہ آواز میں بولا، کتنے دن ایک ہی بات کو سوچتی رہو گی؟ کتنے دن؟ جو چلا گیا وہ اب واپس نہیں آئے گا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب ہر بات پر دل دکھا کر جینا زندگی نہیں ہے۔ تمہیں خود کو اس دائرے سے نکالنا ہوگا۔ ہانیہ نے ایک بار پھر نظریں جھکا لی۔ وہ ہاں نہ کر سکی اور نہ ہی انکار، بس بیٹھی رہی اور آنکھیں دھندلانے لگی، مگر کوئی آنسو نہیں ٹپکا، جیسے اب رو لینے کی سکت نہ باقی رہی ہو۔ ایاز نے ایک آخری نظر بہن پر ڈالی، دروازے کی طرف بڑھا اور جاتے جاتے پلٹ کر کہا، صبح 9 بجے ہم نکل رہے ہیں اور تم چل رہی ہو۔ یہ بحث ختم ہو چکی ہے۔ میں اب کسی بھی قسم کا بہانہ یا انکار افورڈ نہیں کروں گا۔
हानिया अब बहुत हो चुका, छोटी बच्ची नहीं हो तुम कि हर चीज के लिए हम तुम्हें टोकें। वो बोलकर अब ठहरा नहीं था, बल्कि बाहर की तरफ बढ़ गया था। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में पहले से ज्यादा सन्नाटा छा गया। हानिया के आसपास सब कुछ जामिद था, सिवाय उसके दिल के, जहां एक और जबरदस्ती फैसला गूंज रहा था, खामोशी से। रात का सन्नाटा हर शय पर छा चुका था। कमरे की खिड़की पूरी तरह खुली थी, जहां से आसमान की वसतें साफ दिखाई दे रही थी। हानिया खिड़की के पास फर्श पर दो जानू बैठी थी और नजरें आसमान पर जमी हुई थी। चांद कहीं पीछे छुपा हुआ था, बस ठंडी ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। कभी कभार कोई हल्की सी रोशनी आसमान पर हरकत करती, शायद कोई जहाज या सितारा, मगर हानिया की आंखें खाली थी, जैसे वो देख तो रही थी मगर कुछ नजर नहीं आ रहा था। चंद लम्हे बाद अचानक कमरे का दरवाजा आहिस्ता से चुरचुराते हुए खुला। हानिया ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, वो अब भी आसमान को तके जा रही थी। नरमीन अंदर दाखिल हुई और दबे कदमों चलती उसके बराबर में आकर बैठ गई। कुछ लम्हे वो भी खामोश रही, फिर आहिस्ता से अपना हाथ हानिया के कंधे पर रखा तो वो चौंक कर पीछे हट गई, जैसे किसी ने अचानक उसे छू लिया हो। उसकी आंखों में खौफ था और सांस तेज हो गई थी। अरे हानिया, नरमीन ने हैरत से उसे देखा। क्या हो गया है बहन? मैं हूं, इतना क्यों डरती हो तुम? मैं तरस गई हूं पुरानी हानिया से मुलाकात करने के लिए। क्या हशर कर लिया है तुमने? जरा एहसास नहीं है तुम्हें अपनी स्किन का? बाल देखे हैं कैसे हो गए हैं तुम्हारे? वो आते साथ ही हमेशा की तरह शुरू हो गई थी। हानिया ने अपने हाथ सीने पर रख लिए, जैसे खुद को संभाल रही हो, मगर चेहरे पर घबराहट नुमाया थी। नरमीन ने नरमी से कहा, 2 साल हो गए हैं, वो नहीं आएगा। उस रोज ही वो सब खत्म हो गया था। हर वक्त इतनी सहमी हुई क्यों रहती हो? सही हो जाओ अब। तुम्हारा ऐसा हाल ना अयाज को अच्छा लगता है और ना मुझे। तुम्हें क्या लगता है अम्मी बाबा तुम्हें इस हालत में देखकर खुश होंगे? हानिया ने उसकी तरफ देखा। आंखें भीग गई थीं, मगर लहजा सख्त था। आप लोग बार बार क्यों आकर मेरे जख्म को रेतते हैं? मैंने तो अपनी जबान पर भी उस आदमी का नाम नहीं लिया, उस वाकये का जिक्र नहीं किया, मगर आप सब बार बार उसी बात को लेकर बैठ जाते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ याद नहीं करना। प्लीज इस टॉपिक को बंद कर दें। मैं जैसी भी हूं ठीक हूं। मेरे बाल, मेरी स्किन, सब ठीक है। खुदा के लिए बच्चों रहम खाएं मेरे हाल पर। नरमीन उसे देखते हुए बोली, अच्छा छोड़ो, नहीं करती उस आदमी की बात और ना ही उस खतरनाक माजी की। भाई बता रहे थे तुम जाने से इनकार कर रही हो, लेकिन वो तुम्हारे टिकट बुक कर चुके हैं। हम सब मरी जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। नेचर, पहाड़, हवा, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। फ्रेश हवा लोगी तो खुद भी अच्छा महसूस करोगी। हानिया ने आहिस्तगी से सर झटका। मेरा दिल नहीं मान रहा, अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, अंदर से कुछ अजीब सा लग रहा है। न जाने क्यों मरी का नाम सुनते ही बज्जो मेरा दिल कपकपाने लगता है। मैं ठीक नहीं हूं, खुदा के लिए इस टॉपिक को रहने दे। अब आप लोग। नरमीन ने उसके जुमले पर नागवारी से मुंह बनाया और सख्ती से बोली, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता। हर बात में वही सोच, वही डर। इतने खूबसूरत मकामात हैं वहां, हम एक्सप्लोर करेंगे, खूब हंसेंगे, घूमेंगे। तुम खुद कहोगी कि तबीयत बेहतर हो गई है। अयाज बहुत गुस्सा हो रहा था, उसे तुम्हारा ये अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो हर बार मुझसे यही कहता है कि पुरानी हानिया मुझे वापस चाहिए। वो दिन दूर नहीं हानिया, जिस दिन तुम्हें अयाज अच्छी तरह डांटेगा। हानिया कुछ लम्हे उसे देखती रही, फिर नजरें झुका ली। ना इस बात में सर हिलाया और ना इनकार किया, बस खामोशी से वापस आसमान की तरफ देखने लगी। रात की हवा कुछ और ठंडी हो गई थी। नरमीन ने भी उसकी खामोशी को समझते हुए मजीद कुछ ना कहा। दोनों बहनें यूं ही खामोशी से बैठी रहीं, जैसे वक्त थम गया हो। दिल के एक कोने में खौफ और दूसरी के दिल में उम्मीद। काश उसकी बहन ठीक हो जाए, काश वो ट्रॉमा भूल जाए जो उसकी जिंदगी से सारी खुशियां छीन चुका था। पूरी रात इसी कश्मकश में गुजर गई थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। गाड़ी की सीट पर हानिया खामोशी से बैठी थी।
तमाम लोग हंसी मजाक में मशगूल थे, मगर वो खिड़की से बाहर देख रही थी। पहाड़ों का रास्ता अभी शुरू हुआ था और गाड़ी उन चमकदार सड़कों पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। पहाड़ों के बीच की हरियाली और साफ हवा उसे कुछ सुकून दे रही थी, मगर फिर भी अंदर एक हल्का सा खौफ और बेचैनी थी जो उसे अपने साथ लिए जा रही थी। एक अजीब सा खला था जो उसे अपने दिल में महसूस हो रहा था। उसने अचानक ही बददिल होकर उन सब की तरफ देखा था जो बातों में मशगूल थे। गाड़ी का इंजन गरजा और उसकी थोड़ी देर बाद मोबाइल फोन की आवाज ने उसकी तवज्जो हटा दी। उसने बेजारी से फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। नंबर अनजान था। दिल में कुछ उठा, मगर फिर उसने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया और कॉल उठाने का फैसला किया। हेलो, उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। वो फोन कॉल्स रिसीव नहीं करती थी, मगर अभी बराबर में नरमीन और आगे उसका भाई और बहनोई बैठा हुआ था। वो जानती थी अगर कॉल रिसीव नहीं करेगी तो 100 तरह की बातें उसे सुनने को मिलेंगी, इसीलिए उसने फौरन ही कॉल रिसीव कर ली थी। दूसरी तरफ से एक उजाड़ अनजान आवाज सुनाई दी। किसकी इजाजत से तुम घर से बाहर निकल रही हो? मैंने तुम्हें एक दफा समझाया था ना, दूर का रास्ता तुम अबूर नहीं करोगी, मगर लगता है तुम्हें समझ नहीं आती। अब आ रही हो तो अच्छी तरह तैयार होकर आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लहजा और आवाज बेशक अनजान थी, लेकिन ये अल्फाज उसको सुने सुने महसूस हो रहे थे। हानिया की सांसें रुक गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी नजरें मोबाइल पर जमी हुई थी और पूरा जिस्म एक अजीब सी गूंज में था। फौरन उसने परेशानी से फोन के सामने नजर डाली और फिर फौरन पीछे मुड़कर अयाज को देखा। कौन बात कर रहा है? वो लरसते हुए बोली। हेलो। फोन में दूसरी तरफ से कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर उसमें से वही आवाज सुनाई दी। तुम्हें समझ नहीं आती, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। हानिया के हाथ कांपने लगे। वो बेख्तियार फोन की स्क्रीन देखने लगी थी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। उसका दिल डूब रहा था और खौफ की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ रही थी। अयाज जो गाड़ी में उसके करीब बैठा था फौरन उसके चेहरे पर बदलते रंग देकर फिक्रमंदी से बोला, क्या हुआ? हानिया कुछ भी ना कह सकी, बस फोन की तरफ इशारा किया। ये देखिए ना जाने कौन है। उसकी आवाज में इस्तराब था तो अयाज ने फौरन फोन लिया। हेलो हेलो। उसकी आवाज में गुस्सा और सवाल था, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फोन मुनक़ता हो चुका था। क्या हुआ? अयाज ने फौरन पूछा। हानिया के चेहरे पर अफरा तफरी थी। उसका दिल अभी तक बेचैन था। कुछ नहीं, बस एक अनजान आदमी था, अजीब बातें कर रहा था। अयाज ने फोन का नंबर चेक किया और फिर एक गहरी सांस ली। तुम फिक्र ना करो, शायद ये किसी का मजाक हो। हानिया ने सर झुका लिया और खिड़की से बाहर दोबारा देखने लगी। उसका दिल अभी तक तेज धड़क रहा था। इन अल्फाजों को वो पहचानती थी, लेकिन हैरान थी 2 साल बाद एक मरा हुआ शख्स कैसे ये बातें कर सकता है। अपनी सोच पर ही उसे हंसी आई थी। फौरन ही सर झटक कर वो एक बार फिर रास्तों की तरफ मुतवज्जो हो गई, और यही नजरअंदाजी उसके लिए एक कहर बर्पा करने वाली थी जिससे वो मासूम बिल्कुल वाकिफ नहीं थी। रास्ते में पहाड़ी खमदार सड़कों पर सफर करते हुए सब लोग थके हुए लग रहे थे। गाड़ी एक छोटे से होटल के सामने रुकी ताकि वो लोग कुछ देर के लिए आराम कर सकें, फ्रेश हो सकें। हानिया खामोशी से बाहर निकली। उसके चेहरे पर बेजारी नुमाया थी, जैसे सफर उसे मजीद बोझ लग रहा हो। नरमीन ने उसका हाथ थामा। आओ वॉशरूम चलते हैं, थोड़ा हाथ मुंह धो लो, शायद तबीयत हल्की लगे। होटल निस्बतन साफ सुथरा था। सामने छोटा सा लॉन था और दाएं तरफ लेडीज वॉशरूम का साइन लगा हुआ था। दोनों बहनें अंदर दाखिल हुईं। नरमीन जल्दी से फ्रेश होकर बाहर निकल गई, जबकि हानिया अभी आईने के सामने खड़ी अपने चेहरे पर पानी के छींटे मार रही थी। वो पुरसकून अंदाज में तौलिया उठा ही रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और एक बुर्का पोश औरत अंदर दाखिल हुई। उसका मुकम्मल जिस्म ढका हुआ था, चेहरे पर स्याह नकाब था। वो तेजी से चलती सीधी हानिया के करीब आई और दोनों हाथों से उसके बाजू को पकड़ लिया। हानिया एकदम चौंक गई, पीछे हटने लगी, मगर औरत की गिरफ्त मजबूत थी। वो अनजान लोगों से अब बहुत घबराती थी और ये औरत मजीद उसमें घुसती चली जा रही थी। बेटी, उस औरत की आवाज काफी सख्त थी,
मगर लहजे में एक अजीब सा लरस था। यहाँ से चली जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसने कहा था सिर्फ चंद दिन की मोहलत दी है और अब वो मोहलत खत्म हो चुकी है। मरी मत जाओ, वापस लौट जाओ, तुम्हारे लिए वहां मुश्किल हो जाएगी। तुम मुझे मेरी औलाद की तरह अजीज हो। सवालात मत करना, बस यहां से लौट जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतरी है। हानिया की आंखें फैल गईं, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन खुद को पीछे खींचा और कपकपाती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? आपको कैसे पता कि मैं मरी जा रही हूं? औरत ने नकाब के पीछे से हानिया को घूरा। मुझे सब पता है, मैं उसके साथ रहती हूं। वो तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखे हुए है, उसके पास सब मालूमात हैं। मैं तुम्हें सिर्फ खबरदार करने आई हूं। प्लीज मेरी बात मान लो, वापस चली जाओ। हानिया के हाथ से तौलिया गिर गया, उसकी सांस उखड़ गई। वो कुछ और पूछने ही वाली थी कि वो औरत अचानक उसकी गिरफ्त छोड़कर तेजी से बाहर निकल गई। सुनिए, रुकिए। हानिया फौरन उसके पीछे भागी। दरवाजा खोलते ही उसने बाहर की तरफ नजरें दौड़ाई, मगर वो औरत बाएं तरफ मोड़ काट कर गायब हो चुकी थी। होटल के बाहर चहल पहल थी, लोग इधर उधर जा रहे थे, लेकिन उस बुर्कापोश औरत का कोई निशान नहीं था। हानिया कुछ कदम बाहर निकली मगर रुक गई। दिल की धड़कन अभी तक बेतरतीब थी और उसके पांव जैसे जमने लगे थे। वो मजीद आगे नहीं बढ़ पाई। सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही थी। खौफ के मारे उसकी जान निकल रही थी। वो औरत किसकी बात कर रही थी? कौन था जो उस पर नजर रख रहा था? इसीलिए आज सुबह से उसकी तबीयत अजीब हो रही थी। वो बार बार अपने दोनों भाई और बहन को मना कर रही थी कि उसे नहीं जाना, मगर जबरदस्ती सही, लेकिन वो लोग उसे लेकर जाना चाहते थे और यही उन सबकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। होटल के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सब एक साइड टेबल पर बैठे थे। अयाज, नरमीन और शारिक खुशगवार अंदाज में बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरों पर सफर की हल्की सी थकन तो थी, मगर माहौल में इत्मीनान महसूस हो रहा था। उसी लम्हे हानिया तेज कदमों से थोड़ी बौखलाई हुई, आंखों में खौफ लिए टेबल के करीब पहुंची। उसके बाल बिखरे हुए थे, सांसें बेतरतीब थी और आंखों में नमी चमक रही थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अयाज ने उसकी हालत को नजरअंदाज करते कहा, चलो बैठो, मैंने खाना मंगवा लिया है। लेकिन हानिया ने फौरन हाथ उठाकर रोकते हुए उन्हें रोते हुए कहा, नहीं लाला, यहां से चलें प्लीज, वो मेरा इंतजार कर रहा है। वो मरी में मुझे छोड़ेगा नहीं, वो वहीं होगा। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हम यहां से अभी चलेंगे। सब चौंक गए और शारिक फौरन अपनी जगह से उठा और तेजी से हानिया के पास आकर उसका हाथ थामा। छोटी, रिलैक्स करो, बैठो यहां। उसने नरमी से उसे कुर्सी पर बिठाया और फिर उसकी आंखों में देखते बोला, कोई नहीं है वहां, हम सबको मालूम है। वो उस रोज ही खत्म हो गया था। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब खैरियत है ना बेटा? हानिया ने सिसकते हुए अपनी नजरें उठाई। नहीं भाई, आपको नहीं मालूम। अंदर वो आंटी, वो बुरके वाली, वो मेरा बाजू पकड़कर कह रही थी कि वो मेरा इंतजार कर रहा है। वो कह रही थी कि मोहलत खत्म हो गई है और वो मुझे नहीं छोड़ेगा। नरमीन जो बराबर में बैठी थी एकदम चौंक गई। उसके चेहरे पर उलझन थी। कौन आंटी? कैसी बातें कर रही हो हानिया? मैं तो बाहर ही खड़ी थी, कोई भी अंदर नहीं गया। मैं सब कुछ देख रही थी। हानिया की सांस तेज हो गई। वो कुछ कहना चाह रही थी मगर अल्फाज नहीं निकल रहे थे। लब कपकपा रहे थे और आंखों में वाज़ेह घबराहट थी। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा थाम लिया और खामोश हो गई। उसकी हालत ऐसी थी जैसे दिल की धड़कन सुनने में भी दुश्वारी हो रही हो। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या कहे। वो बस सर झुकाकर कुर्सी की पुष्ट से सर टिका गई, जैसे थक चुकी हो। शारिक थोड़ा आगे झुका मगर फिर कुछ ना कह सका। उसने खामोशी से अपनी निशित संभाली, मगर उसके चेहरे पर हानिया की बातों का असर साफ दिखाई दे रहा था। अयाज एक गहरी सांस लेकर बैठा रहा, जबकि नरमीन उलझी भरी नजरों से बहन को देख रही थी। टेबल पर छा जाने वाली खामोशी में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी और हानिया की हिचकियों में छुपी हुई बेचैनी, जो अब उन सबके दरमियान एक अनकही खामोश परेशानी की सूरत में मौजूद थी। सारा दिन सफर करने के बाद गाड़ी मरी की खुनक फजाओं में दाखिल हुई।
तो सबने एक लंबी सांस ली। ठंडी हवा के झोंके, धुंध से लिपटे दरख्त और पहाड़ों का दिल फरेब मंजर आंखों को सुकून देने वाला था, मगर हानिया के दिल में इस्तराब बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही थी, उसके अंदर का खौफ गहरा होता जा रहा था। होटल में पहुंचते ही इस्तकबालिया से चेक इन के बाद 2 कमरों की चाबियां दे दी गई। एक कमरे में अयाज और शारिक का बंदोबस्त था, जबकि दूसरे में हानिया और नरमीन का। नरमीन ने उसका हाथ थामा और दोनों सीढ़ियां चढ़ते कमरे तक आईं। कमरा कुशादा और साफ सुथरा था। एक तरफ बड़ी खिड़की से पहाड़ों का मंजर दिखाई दे रहा था और एक जानिब 2 बेड्स लगे हुए थे। जैसे ही दोनों बहनें अंदर दाखिल हुईं, हानिया ने फौरन दरवाजा बंद किया और नरमीन का हाथ मजबूती से पकड़कर उसके सामने आ गई। बज्जो, उसकी आवाज धीमी मगर लरसती हुई थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हम यहाँ क्यों आए हैं? न जाने क्यों उस फोन कॉल के बाद से मुझे अजीब सा लग रहा है। और अब वो औरत, वो आंटी। हम यहाँ से वापस चलें? आप शारिक भाई से बात करें, वो आपकी बात सुनेंगे। अयाज भाई को वो आराम से समझा लेंगे, प्लीज। और वैसे भी शारिक भाई हर बात समझते हैं। अयाज भाई को वो किसी भी तरह राजी कर लेंगे। वो आपके शौहर हैं बच्चों, आप बात तो करें एक दफा, मेरी खातिर प्लीज। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। वो 2 साल पहले का एक एक लम्हा याद करके कांप रही थी। न जाने क्यों उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस अब यहाँ से जाना चाहती थी। अयाज की मौजूदगी में वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन अब उससे चुप नहीं रहा जा रहा था। नरमीन ने गहरी सांस लेते हानिया के हाथ पर अपना हाथ रखा। काम डाउन हानिया। बच्चे, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इस तरह बर्ताव कर रही हो? तुम छोटी बच्ची नहीं हो, 24 साल की हो चुकी हो। कब तक इस डर के साथ जिंदगी गुजारोगी? कब तक उस इंसान को अपनी जिंदगी से नहीं निकालोगी? वो मर चुका है। वो यहाँ क्या करेगा? तुम सबको परेशान कर रही हो। यहाँ सब इंजॉय करने आए हैं। तुम्हें थोड़ा जहन हल्का करने का मौका मिला है। अपनी वजह से अब सबकी खुशी खराब मत करो। ये बहुत बुरी बात होती है। अयाज भाई ने कितने प्यार और मोहब्बत से हम सबको जोड़ा है। कितने टाइम बाद हम तीनों बहन भाई एक साथ ट्रिप पर आए हैं और तुम सबका ट्रिप बर्बाद कर रही हो। हानिया की आंखों में नमी आ चुकी थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर नरमीन की बात जारी रही। तुम्हें मालूम है, शारिक ने मुझे इतना डांटा कि मैं तुम्हारे साथ उस रूम में क्यों आई हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, उसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारे बेवजह लाड उठा रही हूँ। तुम्हें आज़ाद छोड़ा जाए तभी तुम ठीक होगी। लेकिन मैंने फिर भी यही कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ताकि तुम्हें संभाल सकूं। मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ूंगी। अयाज भाई भी गुस्सा कर रहे थे, लेकिन मैंने भी उन्हें चुप करवा दिया, सिर्फ तुम्हारी खातिर। अब तुम ही बताओ, क्या मैं और मजीद क्या करूं? अगर मैंने बाहर जाकर किसी एक को भी कहा कि वापस चलते हैं तो वो दोनों मुझे खूब डांटेंगे। हो सकता है अयाज भाई तो मार भी लगाएं। इसलिए बेहतर है चुप रहो, प्लीज। हानिया ने नजरें झुका ली। वो जानती थी नरमीन का लहजा सख्त जरूर था, लेकिन उसके पीछे फिक्र और मोहब्बत छुपी थी। मगर इसका दिल फिर भी बेचैन था। उसने कमरे की खिड़की की तरफ नजर दौड़ाई, जहां पहाड़ों के पीछे सूरज ढलने को था। धुंध में लिपटी फिजा में भी उसे एक अनजानी सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मेरा दिल बैठा जा रहा है बज्जो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपको बता रही हूँ, हमने यहाँ आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप लोग मेरी बात अभी नहीं समझ रहे, लेकिन जब समझ आएगी तो बहुत देर हो जाएगी। उस फोन कॉल पर जो अल्फाज मैंने सुने हैं, मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ, वो अल्फाज उसी के हैं। उसी को नहीं पसंद था कि मैं कहीं भी तन्हा जाऊं। कुछ कर लो बज्जो, नहीं तो आप सब समझें कि मुझे एक बार फिर खो दोगे। उसने सिर्फ इतना कहा और आहिस्ता से अपने बैग से दुपट्टा निकालकर बेड पर बैठ गई। नरमीन ने कुछ लम्हे उसे देखा, फिर खामोशी से दूसरे बेड पर बैठी। वो भी मजबूर थी और कुछ नहीं कर सकती थी। कमरे में कुछ देर बाद सिर्फ सांसों की आवाज बाकी रह गई, जैसे माहौल में हानिया के दिल का बोझ महसूस कर रहा हो। शाम की खुनक हवा होटल के लॉन में हल्के हल्के झोंके ले रही थी। आसमान पर सूरज का रंग मध्यम पड़ चुका था। रोशनी अब सुनहरी की जगह नीलगू हो गई थी।
होटल के लॉन में चंद मेजें बिछी थीं और अयाज और शारिक एक मेज पर बैठे चाय की चुस्कियां लेते हंसी मजाक में मसरूफ थे। कहने को वो बहनोई और साले थे, लेकिन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी वाबस्तगी थी। नरमीन ने हानिया का हाथ थामा और उसे भी लॉन की तरफ ले आई। वो बाहर नहीं आना चाहती थी, लेकिन उस खौफ से उसके साथ बाहर आ गई कि अगर कमरे में वो आ गया तब वो क्या करेगी, और इसी खौफ ने उसे कमरे में बैठने की इजाजत नहीं दी। दोनों चुपचाप उनके साथ वाली कुर्सियों पर आकर बैठ गई। शारिक ने मजाहिया अंदाज में कहा, आखिरकार मैडम बाहर आने पर राजी हो ही गई। नरमीन ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर हानिया की नजरें बेचैनी से इधर उधर भटक रही थी। उसका दिल मुसलसल किसी अनजानी घबराहट में फंसा हुआ था। वो उन सब की तरफ मुतवज्जो थी ही नहीं। अचानक हानिया की नजरें लॉन के दाएं जानिब गई तो वो एकदम ठुठक गई, आंखें फैल गई, चेहरा जर्द हो गया। वो कांपती आवाज में चीखी, बज्जो भाई देखें, वो वही औरत है दाएं तरफ, वही बुर्के वाली, वही जिसने मुझे वॉशरूम में कहा था कि वो मेरा इंतजार कर रहा है। तीनों के चेहरे संजीदा हो गए। अयाज, शारिक और नरमीन तीनों ने बैक वक्त गर्दन घुमाकर उसी सिमत देखा, लेकिन वहां चंद बच्चे खेल रहे थे और वहां कोई बुर्कापोश औरत मौजूद ही नहीं थी। नरमीन ने फौरन कहा, हानिया वहां तो कोई नहीं है, देखो खुद, सिर्फ बच्चे हैं। हानिया ने दोबारा तेजी से उस सिमत देखा और उसका दिल धक से रह गया। अब वहां वाकई कोई नहीं था। वो साकित हो गई, फिर एकदम खड़ी हो गई। अयाज भाई, मैं सच कह रही हूं, वो वही थी। आए मेरे साथ, मैं दिखाती हूं, वो अभी यहीं कहीं होगी। शायद उसे वहम हो रहा था, लेकिन वो वहम नहीं था और वो ये बात किसी को नहीं समझा सकती थी। अयाज गुस्से से उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में झुंझलाहट थी। बस करो हानिया, अब बिल्कुल खामोश हो जाओ, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने। हानिया एकदम पीछे हटी। अयाज का लहजा कड़वा और ऊंचा हो चुका था। जब से हम निकले हैं तुम यही ड्रामा कर रही हो, कभी फोन कॉल, कभी कोई औरत, कभी कोई वहम। अब बस कर दो, सबका मजा खराब कर रही हो। कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम अपनी वजह से हर एक को परेशान करो। ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। बिल्कुल खामोश हो जाओ। बड़ी हो चुकी हो तुम, कब तक हम तुम्हें पैम्पर करेंगे। हानिया का रंग फक हो गया। वो पलकें झपकाए बगैर अयाज को देखती रही, फिर नजरें झुका ली। आहिस्ता से आकर अपनी जगह पर बैठ गई और बेआवाज आंखों से आंसू बहने लगे। नरमीन ने उसका हाथ थामा जो अब ठंडा पड़ चुका था। अयाज ने भी नापसंदीदगी से मुंह बनाया। खामोश कराओ इसे। पता नहीं तुम लोग क्यों इतना सर चढ़ा रहे हो इसे। छोटी सी बात को इतना बढ़ाती है। एक पल चैन से बैठना मुश्किल कर दिया है। नरमीन खामोश रही। उसने बस हानिया का हाथ और मजबूती से थाम लिया, जैसे एक बहन होने के नाते बस अब साथ देना रह गया हो। हानिया की नजरें अब जमीन पर थीं और दिल में जैसे कुछ टूट रहा था। खामोश, अंदर ही अंदर, लेकिन यहां कर उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। कमरे में गहरी खामोशी थी। रात की खामोश सांसों में मरी की ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को हल्का सा हिला रही थी। हानिया अपने बेड पर लेटी थी, आंखें छत पर थीं, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। दिल की बेचैनी अब थकन में बदल चुकी थी, मगर आंखें फिर भी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक एक झटके के साथ पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई। पंखा रुका, बल्ब बुझ गया और एकदम गहरा अंधेरा छा गया। हानिया झटके से उठकर बैठ गई। कमरा बिल्कुल स्याह हो चुका था। बाहर कहीं से भी हल्की सी रोशनी नहीं आ रही थी। शाम की उस झड़प के बाद वो कमरे में आकर बंद हो गई थी और जब से आराम कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही वो जागी थी। इरादा अब उन लोगों के कमरे में ही जाने का था, मगर उससे पहले ही लाइट चली गई। वो अंधेरे में अब खौफ खाती थी। उस रात के बाद उसने कभी जिंदगी में अंधेरा नहीं किया था। हर वक्त उजाले में रहना पसंद करती थी। अंधेरे से उसे हमेशा से वहशत होती थी। बज्जो, उसने दबे दबे खौफजदा लहजे में पुकारा। आप कमरे में हो ना? उसको मालूम था वो कमरे में नहीं है, मगर एक एहसास के तहत वो पुकार बैठी। कोई जवाब नहीं आया था। वो समझ गई थी कि नरमीन कमरे में नहीं है। वो अयाज और शारिक के कमरे में गई है। अब वो अकेली थी। खौफ से वो मरने के करीब आ गई थी। उसने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और फौरन टॉर्च ऑन की। कमरे की दीवारें रोशनी में चमकी,
پر سائے ابھی بھی خوفزدہ کر رہے تھے۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور وہ دھیرے دھیرے بیڈ سے اتر کر پورے کمرے میں نظریں دوڑانے لگی۔ جلد سے جلد وہ کمرے سے نکل کر ان لوگوں کے کمرے میں پہنچ جانا چاہتی تھی۔ ویسے بھی جس طرح کی ہنٹ اسے مری میں آ کر مل رہی تھی، بہتر ہی تھا وہ اپنوں کے درمیان رہتی۔ ابھی وہ دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی، تبھی اچانک اسے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی محسوس ہوئی، جیسے کسی نے خاموشی سے سانس لیا ہو۔ ایک سایہ اس کی پشت سے گزرا ہو۔ وہ جھٹکے میں پلٹی، موبائل کی ٹارچ سامنے کی، اور وہیں اس کا سانس رک گیا، دھڑکتا دل تھم گیا۔ واضح طور پر اسے اپنے قدموں تلے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی، یعنی اس کا وہم محض وہم نہیں تھا، وہ حقیقت ہی تھی جسے وہ سب وہم کا نام دے رہے تھے۔ یعنی اس روز وہ ختم نہیں ہوا تھا، وہ زندہ تھا، اور اس نے کہا تھا کہ وہ لوٹ کر آئے گا، اور وہ آ چکا تھا۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہ کھڑا تھا، حیدر شاہ۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی وجود جسے 2 سال پہلے اس نے اپنے ہاتھوں سے پہاڑی سے دھکا دیا تھا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، جسم ساکت ہو گیا، ہاتھ سے موبائل بھی گرتے گرتے بچا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ وہ کچھ بولتا اس سے پہلے ہی اس کی آنکھیں پھترا گئیں، سانسیں بے ترتیب ہوئیں اور جسم لڑکھڑا کر وہیں اس کے قدموں میں گرنے لگا۔ حیدر نے لپک کر اسے تھام لیا۔ اس کے جسم میں سکت نہیں رہی تھی، وہ مکمل بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے لیے یہ احساس ہی جان لیوا تھا، جس انسان کے خوف سے اس نے اس آدمی کو ہی مار دیا تھا، وہ ابھی تک زندہ تھا، اور یہی چیز اسے تکلیف کی انتہا پر پہنچا چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کے کان کے قریب سر جھکایا اور مدھم لہجے میں کہا، میری پیاری سی بیگم، بہت ڈھیل دے دی تمہیں۔ میں نے صاف صاف منع کیا تھا نا کہ بغیر اجازت اتنا لمبا ٹریول نہیں کرو گی، پھر کیوں کیا؟ اب سزا تو دینی پڑے گی نا۔ یہ کہتے ہی اس نے نرمی مگر مکمل گرفت کے ساتھ ہانیہ کو گود میں اٹھایا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں کچھ اور ہی تھا، ایک ایسا جذبہ جس میں محبت، جنون اور انتقام سب یکجا تھے۔ وہ دھیرے دھیرے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور پھر وہ اندھیرے ہی اندھیرے میں ہانیہ کو لیے باہر نکل گیا۔ چند گھنٹے بعد کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہلکی مدھم خوشبو فضا میں تیر رہی تھی۔ دھوپ کی نرم کرنیں کھڑکی کے باریک پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، اور کمرے میں ایک سنہرا سا اجالا بکھرا ہوا تھا۔ نیلے اور سفید رنگوں سے سجا یہ کمرہ نہایت خوبصورت تھا۔ دیوار پر لگی پینٹنگز، صاف ستھرا بیڈ، گلدستہ اور سامنے رکھا نفیس صوفہ، سب کچھ ترتیب سے رکھا گیا تھا، مگر اس خوبصورتی کے بیچ ایک اندیکھی گھٹن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ہانیہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ پلکوں کے نیچے روشنی نے چبھنے کی کوشش کی تو اس نے الجھی ہوئی نظر سے چھت کو دیکھا۔ ذہن جیسے بوجھل تھا، کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، کس وقت ہے اور یہاں کیسے پہنچی۔ اس نے کروٹ لی تو جسم میں ایک جھٹکا سا محسوس ہوا اور وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ جگہ، وہ آہستہ سے بڑبڑائی، میں تو ہوٹل میں تھی، بچوں اور اپنے کمرے میں، یہ کون سا کمرہ ہے؟ کمرے کی خاموشی اور اجنبیت نے اس کا دل دہلا دیا۔ اس نے فوراً نظریں چاروں طرف دوڑائیں۔ دروازہ بند تھا، کھڑکیاں اندر سے بند تھیں اور کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ گھبراہٹ نے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ وہ فوراً بستر سے اتر کر ننگے پاؤں دروازے کی طرف بڑھی اور پوری قوت سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ خوف کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی۔ دروازہ کھولو، پلیز دروازہ کھولو، اس کی آواز اب کانپ رہی تھی۔ بچوں کہاں ہو آپ؟ ایاز بھائی، شارق بھائی، کوئی تو ہو۔ وہ چلاتے چلاتے رو پڑی۔ میں نے کہا تھا وہ زندہ ہے، وہ نہیں مرا تھا اس دن۔ آپ لوگوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ میں اس کے لفظ پہچانتی تھی، حیدر شاہ زندہ ہے۔ اس کا گلا روند گیا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ایاز بھائی کہاں ہیں آپ؟ مجھے یہاں سے نکالیں، وہ درندہ واپس آ گیا ہے، وہ بدلہ لینے آیا ہے، مجھے بچا لیں، خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ اس کی آواز درد میں ڈوب چکی تھی۔
मैं मर जाऊंगी, उसकी कुर्बत नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं शारिक भाई। बज्जो कहाँ हैं आप? मैंने कहा था मुझे नहीं आना मरी। क्यों आप लोग मुझे मरी लाए? निकाले मुझे यहां से। हानिया ने थक कर दरवाजे के साथ जमीन पर बैठते हुए खुद को समेटा। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहते चले जा रहे थे। हाथों से अपना चेहरा छुपाकर वो बच्चों की तरह से सकने लगी। ये खूबसूरत कमरा नहीं, कैद खाना है। ये खुशबू नहीं, धोखा है। मैं जानती हूं वो कहां ले आया है मुझे। वो धीरे धीरे जमीन पर झुककर रो रही थी। हर लम्हा, हर सांस एक नए डर से भरपूर महसूस हो रहा था। उसके रोने की आवाज कमरे की दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थी, लेकिन कोई जवाब देने वाला, कोई तसल्ली देने वाला कोई नहीं था। वो अब तन्हा थी, मुकम्मल तन्हा, और ये तन्हाई उसे काट रही थी। वो हैदर शाह की तहवील में नहीं रहना चाहती थी। जिस इंसान ने उसकी मासूमियत, उसकी खुशियां, उसका सब कुछ छीन लिया था, वो उस इंसान से 100 फुट दूर रहना चाहती थी। मगर कुदरत एक बार फिर उसको उसके सामने खड़ा कर चुकी थी। कमरे की दीवारें साकित थीं, मगर हानिया का जहन शोर में डूबा हुआ था। हर तरफ एक सन्नाटा छाया था, लेकिन उसकी यादें किसी पुरानी फिल्म की तरह एक एक मंजर वापस ला रही थी। कुछ भी तो नहीं भूली थी वो। सब कुछ वाज़ेह था, जैसे कल की बात हो। यूनिवर्सिटी की वो सुबह, जब उसका पहला दिन था। क्लास में बैठे वो बस एक आम सी तालबा थी, संजीदा, खामोश, किताबों से जुड़ी हुई। और वो प्रोफेसर हैदर शाह, पुरकशिश, खुद एतमाद, आंखों में अजीब सी गहराई लिए। उसकी पहली नजर ही हानिया को उलझा गई थी, जैसे वो निगाहें सीधी उसके अंदर तक झांक लेती हों। क्लास के कुछ हफ्ते गुजरे, सब कुछ आम था, जब एक दिन उसने हानिया को अपने ऑफिस में बुलाया। कोई तालीमी मसला होगा, हानिया ने यही समझा था, मगर जो वो बोले तो उसने सब कुछ बदल दिया। हानिया, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, और मैं इस ताल्लुक को मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर अगले कदम पर ले जाना चाहता हूं, शादी। हानिया हैरत ज़दा हो गई, दिल धड़कने लगा। वो खूबसूरत था, उसकी बात, चाल, शख्सियत सब कुछ मुतासिर कुन थी। और वो अभी नादान थी, जज्बाती, ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली। बगैर ज़्यादा सोचे इसने हाँ कर दी। कुछ दिनों में ही रिश्ता तय हो गया। खानदान वाले राजी थे, और वो एक खूबसूरत दुल्हन बनकर हैदर के साथ उसके घर चली गई थी, इस बात से बेखबर कि आगे उसकी जिंदगी किस तरह तब्दील होने वाली है। पहली ही रात कमरे का दरवाजा बंद हुआ और माहौल बदल गया। वो मर्द जो सबके सामने मुहज़्ज़िब और नरम खू था, वो एकदम बदल गया। उसकी आंखों में एक और रंग आ गया, लहजा सख्त और रवैया सर्द। कुर्बत जैसी ज़बरदस्ती हो, जैसे वो जिस्म की मलकियत मांग रहा हो, मोहब्बत की नहीं। हानिया की रूह काम गई थी, मगर वो कुछ ना बोली, सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती गई। 2 महीने बीत गए। वो हर रोज़ एक नई बर्दाश्त जीती और हर रात एक नई अजियत सहती। फिर हैदर ने सवात जाने का फैसला किया। हनीमून कहा था उसने, वहाँ सब ठीक लग रहा था। कुदरती मनाजिर, होटल का खूबसूरत माहौल और हैदर का बज़ाहिर मामूली रवैया। हानिया ने सोचा शायद सब बेहतर हो जाएगा। फिर एक दिन दोपहर को जब वो बालकनी में खड़ी थी, उसका फ़ोन बजा। नंबर अनजान था, लेकिन आवाज़ जानी पहचानी। बेटा, मैं तुम्हारी सास बोल रही हूँ, तुम वहाँ से फौरन भाग जाओ। हैदर ने 2 आदमियों को बुलाया है, वो तुम्हें उनके हवाले करने वाला है। तुम्हारी इज्जत खतरे में है, बचा लो खुद को। हानिया के जिस्म में खून जैसे जम गया, दिल धड़कने लगा और हाथ कांपने लगे। कुछ लम्हे गुजरे, उसने खुद को संभाला। वो दोनों सवात की पहाड़ियों पर घूमने गए थे। वहीं उसने हैदर से इस बात का जिक्र किया, बंद लफ्जों में, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें किसी के हवाले कर दूंगा? तुम मुझे क्या समझती हो? उसकी आवाज़ धीमी मगर सर्द थी। मगर फिर उसने करीब आकर इसकी कलाई थामी। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ। वो उस लम्हे पहाड़ी किनारे पर खड़े थे। इसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि सांस लेना दुश्वार हो गया, और उसी लम्हे खौफ ने हाथ पकड़ लिया। उसने एक झटके से हैदर को धक्का दिया। वो पहाड़ी से नीचे गिरा। सन्नाटा छा गया और हानिया वहां से भाग आई।
सीधी अपने भाई के घर। किसी ने कुछ नहीं पूछा, सब ने उसे वक्त दिया और खामोशी दी। 2 साल बीत गए और अब मरे की इस खामोश खुनक फिजाओं में वही चेहरा उसके सामने आ खड़ा हुआ। हैदर शाह जिंदा सलामत, जैसे कुछ हुआ ही ना था। लेकिन वो जानती थी बहुत कुछ हो चुका था और शायद अब बहुत कुछ होने वाला था। कमरे की खामोशी गहरी हो चुकी थी। हानिया एक कोने में दीवार से टेक लगाए बैठी थी, गुमसुम भीगी आंखों के साथ माजी की गर्द में डूबी हुई। उसके चेहरे पर बेयकीनी, खौफ और पशेमानी एक साथ दिखाई दे रहे थे। दिल की धड़कन जैसे अंदर ही अंदर चीख रही थी। चंद लम्हों बाद अचानक दरवाजे का हैंडल हिला और दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। कदमों की आवाज सुनते ही हानिया ने नजरें उठाईं। दरवाजे से वही वजूद अंदर दाखिल हुआ। हैदर शाह, सफेद शर्ट के ऊपर हल्का ग्रे कोट, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक। हानिया की आंखें खौफ से फैल गईं। उसने फौरन खुद को दीवार के साथ मजीद समेट लिया, दोनों घुटने सीने से लगा लिए और खामोशी से उसे देखने लगी। सांसें तेज हो चुकी थीं, दिल जोर से धड़क रहा था। 2 साल बाद इसी शख्स को अपनी नजरों के सामने देखना, जिसको 2 साल पहले मरा हुआ तसव्वुर कर रही थी, उसकी जान ले रहा था। हैदर आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आया और जमीन पर 2 जानू बैठ गया। उसकी आंखें सीधी हानिया की आंखों में थी। मेरी बेगम, मेरी स्वीट हार्ट। उसकी आवाज नरम मगर तल्ख लहजे में थी। तुम्हें क्या लगा था कि मैं खाई से जिंदा वापस नहीं आ पाऊंगा? वो हंसा। और अफसोस है मुझे तुम्हारी इस घटिया सोच पर कि मैं तुम्हें किसी 2 मर्दों के हवाले कर दूंगा। हानिया, तुमने ये सोचा भी कैसे? हानिया की आंखों से आंसू रवां हो चुके थे। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मैं डर गई थी। मैं बहुत डर गई थी हैदर। मुझे कुछ समझ नहीं आया उस वक्त। वो बेरद जुमलों में बोलते हुए रोने लगी। मैं घर आकर बहुत रोई थी, बहुत पछताई थी। मुझे बाद में समझ आया कि आपकी अम्मी वो गलत बयानी कर रही थी। मैं गलती पर थी, मैं मानती हूं। हैदर का चेहरा लम्हा भर के लिए सख्त हो गया। उसने अपनी नजरें हानिया के लरजते वजूद पर जमा दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें हानिया, शौहर को मारकर, उसे मुर्दा समझकर 2 साल बाद घूमने आई हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हानिया तड़प कर बोली, मुझे नहीं मालूम था आप जिंदा हैं। मैं खुद अजियत में रही हूं। मुझे नींद नहीं आती थी। मैं हर रात वो मंजर देखती थी। मैं सच कह रही हूं, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मुझे जबरदस्ती लाया गया है यहां। मैं नहीं जानती थी कि ये सब होगा। उसके आंसू अब उसकी गर्दन तक बह चुके थे। हाथ कांप रहे थे और वो अपने वजूद में मजीद सुकड़ती जा रही थी। हैदर ने एक गहरी सांस ली। अब तुम मेरे पास हो और इस बार फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं कि वो धक्का सिर्फ जिस्म को नहीं, मेरे वजूद को लगा था। तुमने मुझसे मेरी अना छीनी, एतमाद छीना। अब जो होगा वो तुम्हारे फैसले का बदला नहीं, तुम्हारी आजमाइश होगी। हानिया ने नजरें झुका ली। दिल में कांटे चुभने लगे थे। अब वो वक्त नहीं रहा था और ना ही वो हैदर वो रहा था और ना हानिया, मगर जो बाकी था वो अधूरा हिसाब था। वो आहिस्ता से गोया हुआ, यहां तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं लाया हानिया, तुम्हें मैंने बुलाया है। हानिया की आंखों में हैरत और खौफ एक साथ झलकने लगे। क्या मतलब? वो दबे लहजे में बोली, जैसे खुद से भी ये सवाल छुपाना चाहती हो। हैदर के लबों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट उभरी। जिस दिन तुमने मुझे उस पहाड़ी से धक्का दिया था, वो पहाड़ी नहीं थी, वहां नीचे पानी था। तुम समझी मैं मर गया। अफसोस, तुम मुझे इतना कमजोर समझती थी। हानिया की आंखें फैल गईं, सांस अटक गई। तो आप बच गए थे? हैदर ने सर्द अंदाज में सर हिलाया। हाँ, मैं बच गया था और उसके बाद मैंने सिर्फ तुम्हारे भाई अयाज से राब्ता रखा। हानिया जैसे साकित हो गई। अयाज भाई? हाँ, हैदर की आवाज में जहर धंसा हुआ था। तुम्हारे जैसी नासमझ इंसान से राब्ता रखना बेकार था। तुम्हारे भाई से मैं राब्ते में था। वो जानता था कि मैं जिंदा हूं। उसने ही सब इंतजाम किया, सब प्लान का हिस्सा था।
तुम मरी आई, तुम्हें अकेला किया जाएगा और तुम दोबारा मेरे पास आओगी, लेकिन इस बार तुम्हारे फैसले नहीं होंगे। हानिया का दिल जैसे हलक में आ गया। मेरे घर वाले जानते थे? हैदर ने उसकी आंखों में देखते धीरे से सर हिलाया। हाँ, तो वो सब जानते थे कि आप जिंदा हैं, और फिर भी किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, आंसू बेख्तियार निकलने लगे। हानिया, हैदर की आवाज अब कुछ सख्त हो गई थी। अगर तुम्हें मेरी कुर्बत से मसला था, अगर तुम्हें कुछ भी बुरा लगता था, तो तुम मुझसे बात कर सकती थी। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या किया? तुमने अपनी बहन से बात की, अपनी सास की बात मानी, लेकिन अपने शौहर से एक लफ्ज नहीं कहा। क्या यही एतमाद था तुम्हारा? हानिया ने जवाब देना चाहा, मगर लफ्ज हलक में अटक गए। सिर्फ इतना बोली, मैं डर गई थी, मैं कमजोर पड़ गई थी। मुझे लगा आप मुझे। हाँ, तुम्हें लगा मैं तुम्हें बेच दूंगा। हैदर ने उसकी बात काटकर तंजिया अंदाज में कहा। यह तुम्हारी सोच थी मेरे बारे में? फिर अब जो हो रहा है वो तुम्हारी ही सोच का नतीजा है। हानिया ने दीवार से सर टिका दिया। उसका चेहरा अब मुकम्मल नदामत से भर चुका था। कोई और लफ्ज बाकी नहीं बचा था, सिर्फ खामोशी और उसके अंदर एक चीखती हुई आवाज। काश मैंने बात की होती, काश मैंने सुना होता, यकीन किया होता। कमरे में खामोशी की दबीज चादर तनी हुई थी। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे, दीवार से टेक लगाए। हानिया के चेहरे पर लरसती शर्मिंदगी और सहमे हुए जज्बात साफ झलक रहे थे। हैदर खामोश नजरों से उसे देख रहा था, उसके चेहरे के बदलते तासुरात को पढ़ रहा था, जैसे वो उसकी हर सोच को लफ्जों से पहले सुन रहा हो। अचानक वो बोल उठा, लहजा नरम मगर वाज़ेह था। अब बताओ हानिया, आगे क्या करना है? मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है या फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूं? हानिया ने सर उठाकर उसे देखा। आंखों में एक कर्ब छुपा हुआ था। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, वो धक्का मैंने घबराहट में दिया था हैदर, वरना इन 2 सालों में जो पछतावा, जो अजियत मैंने झेली है, शायद ही किसी ने कभी झेली हो। मैं हर रात उस लम्हे में कैद हो जाती थी। मुझे आपकी आवाज, आपकी नजरें सब याद आती थी। मुझे खुद से नफरत हो गई थी। हैदर की आंखों में एक लम्हे को नमी सी आई। वो गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारे इन 2 सालों का हिसाब मुझे मालूम है हानिया। मैं जानता हूं तुमने कैसा वक्त गुजारा है। तुम्हें नींद की गोलियों की आदत हो गई थी। तुम अक्सर खिड़की के पास बैठकर रोती थी। ये सब मैं जानता हूं, और इसीलिए आज मैं तुमसे नरमी से बात कर रहा हूं। हानिया की आंखों में हैरत उभरी। आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि तुमसे दूर रहकर भी मैं तुमसे बेखबर नहीं रहा। मैं तुम्हें बचा रहा था, अपने घर वालों से। हैदर का लहजा अब थोड़ा सख्त हो गया। मेरे साथ तुम्हारी जान को भी खतरा था हानिया। मेरे अपने ही दुश्मन बन चुके थे। मेरे बाप ने सारी जायदाद मेरे नाम की थी, और मेरी सौतेली माँ, जिसने तुम्हें मेरे खिलाफ किया, वो इन सब चीजों के पीछे थी। वो लम्हा भर रुका, फिर आहिस्तगी से गोया हुआ। वो औरत कुछ भी कर सकती थी। तुम्हें मरवाने का प्लान था उसका, इसलिए मैंने खुद को मरवा कर साबित कर दिया। सब कुछ खत्म करके, सब निपटा कर आज तुम्हें लेने आया हूं। अब सब ठीक है और तुम बेफिक्र रहो। तुम्हें अब मेरी तरफ से कोई दर्द नहीं मिलेगा। अगर रहोगी तो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ में रहोगी। हानिया की आंखों से आंसू बेकरारी से बहने लगे। वो धीरे से उठकर हैदर के पास आई और लरसते कदमों के साथ उसके सामने बैठकर उसके सीने से लग गई। मुझे माफ कर दें, मैं बहुत टूट गई हूं। मुझे संभाल लें, मुझे आपकी जरूरत है, वो सिसकते हुए बोली। हैदर ने आहिस्तगी से उसके सर पर हाथ रखा और चंद लम्हों के लिए सब कुछ थम सा गया, जैसे बरसों का बोझ एक आह में तहलील हो गया हो। 1 हफ्ते बाद ठंडी हवा के झोंके मरी के पहाड़ों पर बिखरे बादलों के साथ उड़ रहे थे। सब्जो सफेद कोहर में लिपटे नजारे जैसे किसी हसीन ख्वाब की ताबीर हो रहे हों। हानिया और हैदर एक छोटे से पथरीले रास्ते पर खड़े थे। नीचे दूर तक फैली वादी उनके कदमों के नीचे थी और सामने धुंध में लिपटे दरख्तों का खामोश रक्स जारी था। हानिया दोनों हाथों को आगे किए पहाड़ों की जानिब देख रही थी। उसका चेहरा पुरसकून था,
जैसे सालों का बोझ उतर चुका हो। हैदर उसके बिल्कुल साथ खड़ा था। एक नरमी और फख्र उसके चेहरे पर नुमाया था। तभी नीचे से कदमों की आवाज आई। पीछे मुड़ने पर अयाज, नरमीन और शारिक को आते देखा। तीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में कुछ देरीना एहसासात झलक रहे थे। पहले नरमीन दौड़कर आई और हानिया को गले लगा लिया। उसकी आवाज लरज रही थी। यार, इतनी तकलीफ तुमने बर्दाश्त की और मैं कुछ नहीं कर सकी। मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर थी। सच में हमें सख्ती से मना किया गया था कि हम तुम्हें कुछ नहीं बताएं। हानिया ने उसकी पुश्त पर हाथ रखा और हल्की सी मुस्कुराहट से बोली, तुमसे नाराज हो ही नहीं सकती बज्जो। तुमने जितना किया वो भी बहुत था। मैं जानती हूं तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या था। फिर अयाज आगे बढ़ा। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर हानिया को अपने सीने से लगा लिया। छोटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत डांटा, सख्त रवैया रखा, लेकिन मुझे भी मजबूर कर दिया गया था। मेरी भी एक बहन है, मैं तुम्हें कैसे नुकसान में डाल सकता था। हानिया की आंखों में नमी लिए सर हिलाया। मुझे अब सब समझ में आ गया लाला, मैं किसी से नाराज नहीं हूं। बस शुक्रगुजार हूं कि आप सबने मेरे लिए इतना सोचा। शारिक ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, तुमने बहुत हौसले से सब कुछ झेला, बस अब खुश रहो, यही दुआ है। हानिया ने एक गहरी सांस ली और सबके दरमियान खड़ी होकर हैदर की तरफ देखा। मैं आज सबके सामने एतराफ करना चाहती हूँ, जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलत फहमी का नतीजा था। मैंने अनजाने में हैदर के साथ नाइंसाफी की। जो भी खौफ, जो भी परेशानी थी, वो सब मेरे जहन की कमजोरी थी। वो एक कदम आगे बढ़ी, हैदर का हाथ थामा। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, इस बार मुकम्मल भरोसे और मोहब्बत के साथ। हैदर ने नरम मुस्कुराहट के साथ उसके हाथ को अपने सीने से लगा लिया। यही तो मैं चाहता था, एक नई शुरुआत, तुम्हारे साथ, तुम्हारे एतमाद के साथ। पहाड़ों पर गूंजती हवा, बादलों की नरमी और आसपास के परिंदों की आवाज, सब कुछ जैसे एक मुकम्मल लम्हा बन गया। सबने तालियां बजाईं, हंसी खुशी के कहकहे गूंजे। वो पहली बार दिल से महसूस कर रही थी कि वो मुकम्मल है, महफूज है और प्यार में बंधी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।